Hello student, welcome back to my YouTube channel that is Dr. Monica Patel. So today's topic is hypovolemic shock. In this lecture, we will learn regarding the definition, causation that means the etiological factors, pathophysiology, clinical features, management as well as compensatory mechanism for the shock. So let's learn together. Start with the definition. Shock defined as a condition in which circulation fails to meet the nutritional need of the cell and at the same time fails to remove the metabolic waste products from the body. So what is shock? In the shock, circulation fails to meet the nutritional need of the cell. सेल को जो न्यूट्रिशन चाहिएगा, ब्लड चाहिएगा, ऑक्सीजन चाहिएगा, वो सर्कुलेशन के थ्रू नहीं मिलेगा या तो कम मिलेगा, राइट? एंड एट द सेम टाइम this circulation also fails to remove metabolic waste products from our body. So clinically it is characterized with some sort of sign and symptoms because due to cardiac output insufficient. यहाँ पे cardiac output कैसा है? Insufficient है, कम है to fill the arterial tree with the blood under sufficient amount and sufficient pressure. यहाँ पे कार्डियक आउटपुट इतना कम है कि वो आर्टेरियल ट्री में ब्लड जो है वो नॉर्मल अमाउंट में एज वेल एज नॉर्मल प्रेशर में नहीं फिल कर पाएगा और इस कंडीशन को हम बोलेंगे शॉक, राइट? समझ गए? बेसिकली हमारे सेल को जो न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं मिलेगा और दिस कंडीशन को हम बोलेंगे शॉक. There are many type of the shock. First one is the hematogenic shock or hypovolemic shock. Second one is the traumatic shock. Third one is the neurogenic shock. Fourth one is the cardiogenic. Fifth one is the septic shock. And last one is the miscellaneous shock. So आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ हाइपोवॉलेमिक शॉक के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? सो व्हाट इज हाइपोवॉलेमिक शॉक? देखिए नाम पर से ही आपको पता चल जाएगा कि हाइपोवॉलेमिक शॉक का मीनिंग क्या होगा. हाइपो मीन्स लेस और डिक्रीज, वॉलेमिक मतलब कि वॉल्यूम. दैट मीन्स हमारे बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड कम होगा और जो शॉक होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोवॉलेमिक शॉक. So, shock occurred due to loss of body fluid resulting in hypoperfusion of the cell. कैसा परफ्यूजन है? हाइपो माने कि सेल को जितनी न्यूट्रिशनल नीड है उतनी फुलफिल नहीं हो पाएगी. क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड. And this type of the shock is known as the hypovolemic shock. So what are the etiological factors? First one is loss of blood volume. Second is the loss of fluid, plasma, electrolyte due to किस किस कंडीशन है जहां पे फ्लूइड, प्लाज्मा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव वॉमिटिंग, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव डायरिया एंड डिहाइड्रेशन. So this all are the causative factors of the hypovolemic shock. So into the hypovolemic shock, what happened? Loss of intravascular volume into the cardiovascular system. माने कि वास्कुलर सिस्टम में, वेसल ट्री में जो वॉल्यूम है वो कम होगा बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ फ्लूइड, which leads to hypoperfusion of the cell or we can say the organ and tissue. It is occur because of the blood loss, because of the fluid loss related to certain chronic conditions and certain therapies, right? So जब भी हमारी वास्कुलर सिस्टम में फ्लूइड कम होगा और उसकी वजह से जो शॉक देखने को मिलेगा उसको हम हाइपोवॉलेमिक शॉक कहेंगे. Now what is the pathophysiology of hypovolemic shock? उससे पहले हम थोड़ा कार्डियक साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे. नॉर्मल हमारे बॉडी में सर्कुलेशन की जो मैकेनिज्म है वो कैसे रहती है, राइट? दिस इज द हार्ट, दिस इज द फोर part of the heart, we can say this is the right side of the heart and this is the left side of the heart. As you all know that by the inferior and superior vena cava, the deoxygenated blood enter into the right side of the heart, right?
सारे बॉडी में से, सारी वेसल्स में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कहाँ पे आता है? राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब राइट साइड ऑफ द हार्ट में से ये ब्लड जाएगा कहाँ पे? लंग्स में, राइट। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में से ब्लड गया लंग्स में। लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, और वी कैन सी द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन है, दिस टाइप ऑफ ब्लड रिटर्न इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। समझ गए? सारी साइकिल, पूरी साइकिल क्या रहेगी? हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट में से वो लंग्स में जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन, एंड वापस कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कार्डियक आउटपुट के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट होगा। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग फॉर द वेरियस टाइप ऑफ द ऑर्गन, और वी कैन से द सेल, और उसकी मदद से ये सारे सेल जो है, ऑर्गन है, उसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, वेरियस न्यूट्रिशनल फैक्टर्स मिलेंगे। दिस इज द नॉर्मल साइकिल। लेकिन यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया? डेफिनेशन में हाइपोवॉलेमिक शॉक में क्या होगा? बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाएगा। तो ये सारा जो रिटर्न डिक्रीज द टोटल ब्लड वॉल्यूम, हमारे वेसल्स में जो ब्लड था वो कम हो गया बिकॉज ऑफ द हेमरेज, बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव वॉमिटिंग और excessive diarrhea, right? So decrease the filling of right heart. Decrease, it leads to decrease the filling of right heart. Or because of the decrease the filling of right heart, decrease the blood volume in pulmonary circulation. माने कि lungs में भी इतना कम ही blood जाएगा। That means decrease the filling of left atrium and ventricle, माने कि जो वापस लेफ्ट में आने वाला ब्लड का अमाउंट है वो भी कम ही होगा। Which means it decrease the arterial blood pressure and decrease the cardiac output. लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आया ही कम अमाउंट में है तो कार्डियक आउटपुट भी तो डिक्रीज ही होगा, कम ही होगा, विच मे लीड टू डिक्रीज द ब्लड फ्लो इनटू द वेरियस ऑर्गन। और इसकी बिकॉज ऑफ दैट द सेल की जो न्यूट्रिशनल नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, और उसकी मदद से बिकॉज ऑफ दैट हम वेरियस साइन एंड सिम्टम्स जो है वो देख पाएंगे, जो कि हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ द शॉक रहेंगे, राइट। सो दिस इज द कॉमन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द शॉक। हमारे बॉडी की जो नॉर्मल साइकिल है ब्लड की वो आपको याद रखनी है। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूइड वॉल्यूम, अब क्या होगा? राइट साइड में जो वेनस रिटर्न आ रहा है वो भी कम आएगा। अब राइट साइड में कम है तो लंग्स में भी प्योरिफिकेशन के लिए कम ही अमाउंट में जाएगा। अब लंग्स में कम अमाउंट ऑफ ब्लड है, दैट मीन्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में भी लैक अमाउंट ऑफ ही ब्लड होगा। अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और सेल जो है वो हाइपोपरफ्यूजन में जाएंगे, और वी कैन से दी न्यूट्रिशनल नीड जो है सेल की, ऑर्गन की, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। देखिए ये जो है वो पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी की, जिसमें क्या होता है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम बॉडी कहाँ पे जाएगा? राइट साइड ऑफ द हार्ट में, राइट साइड ऑफ द हार्ट में से लंग्स में, फ्रॉम लंग वो जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, अल्टीमेटली दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड distribute into the each and every part of the body. This is the normal cycle of our body. Lekin because of the shock, there is the decrease the amount into the right side of the heart. That means decrease the blood amount into the lung. That means decrease the venous return to the right side of the heart. Sorry, left side of the heart. That means decrease the cardiac output. And cardiac output ही कम है. That means शॉक के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो हमको देखने को मिलेंगे, राइट। देन द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस। कितना ब्लड लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। इनटू द माइल्ड फॉर्म ऑफ शॉक there may be less than 20% of the blood loss. हमारे बॉडी के टोटल ब्लड में से 20% ऑफ ब्लड लॉस हुआ होगा तो हमको माइल्ड शॉक देखने को मिलेगा। Then moderate shock in which 20 to 40% of blood loss, and severe shock that means more than 40% of blood loss. Now clinically हम कैसे diagnose करेंगे कि this one is the mild, this one is the moderate and severe. So into the mild shock, extremities become
cold and pale, sweat on the forehead, that means perspiration on the forehead, urine output, blood pressure and pulse rate. ये तीन जो है वो मार्कर बोल सकते हैं हम शॉक की, जिसकी मदद से हम सिवियरिटी ऑफ दिस शॉक जो है वो डिटरमाइन कर पाएंगे, राइट? तो फर्स्ट वन इज द यूरिन आउटपुट, सेकंड वन इज द ब्लड प्रेशर, थर्ड वन इज द पल्स रेट मे बी नॉर्मल, बिकॉज यहाँ पे माइल्ड शॉक में क्या है, लेस देन 20% ऑफ ब्लड लॉस हुआ होगा. Patient may feels cold and thirsty, right? Into the moderate form of shock where 20 to 40% of blood loss, oliguria, that means decrease urinary frequency, then increase the pulse rate more than 100. नॉर्मली पल्स कितने होते हैं 72, यहाँ पे पल्स कितने देखने को मिलेंगे मोर देन 100. Initially blood pressure normal but later on may be decreased, right? Into the severe shock, skin of limbs become cold and clammy, pale face, decrease urine output, or we can say the absent urine, right? Decrease urine output माने की oliguria, absent urine माने की anuria. Increase the pulse rate इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द कंपेंसेटरी मैकेनिज्म. हमारी बॉडी ट्राई करेंगी कि हार्ट जल्दी जल्दी पंप करे, और बिकॉज ऑफ दैट पल्स रेट हमको ज्यादा देखने को मिलेगी. बट बिकॉज ऑफ द हमारी बॉडी में ब्लड ही नहीं है, फ्लूइड ही कम है, तो अल्टीमेटली डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, राइट? Now the clinical monitoring, how we approach the case of hypovolemic shock. Constant monitoring of the patient, especially for, हमको patient को constantly monitoring करना पड़ेगा, और वो हम किस प्रकार कर सकते हैं. First, look for the blood pressure normal in an initial stage but later on decrease, right? Into the initial stage, our body try to compensate that particular pathophysiology, but later on, ultimately, because of the loss of fluid, there may be a decrease the blood pressure. Second one is the respiration. Shock leads to metabolic acidosis and hence hyperventilation. जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार हमको हाइपरवेंटिलेशन देखने को मिलेगा. थर्ड वन इज द यूरिन आउटपुट. इट इज द गुड इंडिकेटर फॉर शॉक. Into the initial stage, urine output may be normal, but later on, according to the loss of fluid amount, there may be a oliguria, that means decrease the urine output, or we can say the anuria, that means total absence of the urine. Fourth indication is the central venous pressure, measurement of the CVP by inserting the catheter in a right internal jugular vein. नेक में जो वेन है वहां पे हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे और प्रेशर मेजर करेंगे. अगर सीवीपी लो है, दैट मीन्स आईवी थेरापी, इंट्रावेनस थेरापी, फ्लूइड थेरापी नीडेड है. अगर सीवीपी हाई है, दैट मीन्स आईवी थेरापी नॉट नीडेड, राइट? And fifth indication for the shock is ECG. Severe shock may lead to myocardial infarction. So these are the some of the indicator by which we can know the severity of shock. Then after management, first point of the management is resuscitation. Try to clear the airway, maintain the proper ventilation and oxygenation. Patient may require intubation if patient is not able to respire normally, breathe normally, then you may assess with the intubation as well as the ventilation support, right? So first one is the resuscitation. Second is the immediate control of bleeding. You have to control the bleeding, especially into the hemorrhagic shock. तो हम क्या करेंगे, अगर लोअर एंड में फुट में फुट का क्या कराएंगे, एलिवेशन ऑफ फुट हैंड एंड, दैट मीन्स द लोअर लिम्ब. उससे क्या होगा, लोअर लिम्ब में जितना भी ब्लड है वो सेंट्रल के एरिया तरफ और वी कैन से हार्ट की तरफ फ्लो ज्यादा आएगा, उतना कार्डियक आउटपुट हम ज्यादा मेंटेन कर पाएंगे. देन थर्ड इज द कंप्रेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द हेमरेजिक साइट. जो हेमरेजिक साइट है जहां से एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम पैकेज करेंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशराइज करेंगे कि जिसकी मदद से ब्लड लॉस हम कम कर पाए, राइट? एंड ऑपरेशन में रिक्वायर टू स्टॉप ब्लीडिंग. इन सम केसेस देयर मे बी अ नीडेड ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन. ये देखिए, दिस वन इज द इंट्यूबेशन,
This one is the packaging of hemorrhagic site, and patient may need to ventilation support, right? Now, fluid replacement. Third is the fluid replacement. IV fluid therapy to maintain total blood volume. जितना loss हुआ है उतना हमको देना पड़ेगा, right? And this for assess a degree of fluid required by measuring. हमको कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में हमको 500 ml देना है, 1 लीटर देना है, 2 लीटर फ्लूइड देना है? तो उसको मेजर करने के लिए 3 इंडिकेटर जो है वो हम चेक करेंगे. फर्स्ट वन इज द ब्लड प्रेशर, सेकेंड वन इज द पल्स रेट एंड थर्ड वन इज द यूरिन आउटपुट, राइट? हमारे फ्लूइड थेरेपी के बाद भी जो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो हमको और ज्यादा फ्लूइड की जरूरत है. समझ गए? और अगर फ्लूइड थेरेपी के बाद धीरे धीरे से ये सारे वाइटल्स नॉर्मल लिमिट की तरफ आ रहे हैं तो अब फर्दर फ्लूइड जो है वो हमें देने की जरूरत नहीं है. तो दिस ऑल थ्री आर द इंडिकेटर टू मेजर द फ्लूइड थेरेपी और वी कैन से द अमाउंट ऑफ फ्लूइड. Now, fourth one is the medication, sedatives, morphine, generally IV given for the sedation. Because of the injury, because of the blood loss, patient के अंदर anxiety होगी, restlessness होगा, sleeplessness होगा, pain होगा और इस सब को कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को क्या देंगे? sedatives, जिसकी मदद से पेशेंट आराम से अपनी स्लीप एंजॉय करे और मीनवाइल हम हीलिंग की तरफ आगे बढ़ पाए. Second one is the chronotropic drug which increase the heart rate. Third one is the inotropic drug which improve the strength of cardiac muscle. Fourth one is the vasoconstrictor जो वेसल का कंस्ट्रिक्शन करवा सके, कॉन्ट्रैक्शन करवा सके. उसकी मदद से क्या होगा? जितनी भी पेरिफेरल वेसल है, हाथ में, पैर में जितनी भी वेसल्स है वो सारी कॉन्ट्रैक्ट होगी. उस कॉन्ट्रैक्शन की मदद से क्या होगा? पेरिफेरल में, हाथ पैर में जो ब्लड है वो सेंट्रल एरिया माने कि हार्ट की तरफ आएगा. हार्ट में जितना ज्यादा ब्लड राइट साइड में आएगा उतना ज्यादा लंग में जाएगा. याद कीजिए वो पूरी साइकिल, राइट हार्ट टू लंग, लंग टू लेफ्ट हार्ट एंड फाइनली कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, राइट? अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ तो ईच एंड एवरी सेल और ऑर्गन को भी ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड और वी कैन से द न्यूट्रिशन मिल पाएगा. And third, last one is the beta blocker, which improve the efficacy of ventricular contraction, right? So this is the management, how you should manage the case of hypovolemic shock. So this is all regarding the hypovolemic shock. I think compensatory mechanism हम next lecture में study करेंगे. If you like this video, please like, share and subscribe my channel, that is Dr. Monica Patel Homeo Care. Thank you.